ظاہر ہے جو ترامیم ہے اس کے حوالے سے بات ہوگی، مگر کل جو کچھ کیا گیا رات کے دیر تک، آپ ظاہر ہے ان چند شخصیات میں سے تھے حکومت کی طرف سے جو موقف دینے کے لیے میڈیا کو اویلیبل تھے، کیا اس انتھک محنت کی منطق کیا تھی؟ کہاں سے آپ کو لگا کہ آپ کے نمبرز پورے ہیں اور یہ کرنے جا رہے ہیں؟ میاں صاحب کو بھی بلایا، پھر وہ لاہور چلے گئے، کیا کر رہے تھے آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ زیب صاحب بہت بہت شکریہ۔ جی بالکل، جہاں تک نمبرز گیم ہے بالکل اس میں نمبرز تو ہمارے پورے ہیں اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن ایک براڈر کنسنسس جو ڈیولپ کرنا تھا تمام تر اتحادیوں کے ساتھ بھی اور اس کے ساتھ اپوزیشن کو بھی آن بورڈ لینا تھا، اس کمیٹی میں سیر حاصل گفتگو بھی ہوئی اور تمام تر پوائنٹس بھی آئے انڈر کنسیڈریشن، جو مختلف آراء ان کی آئی اس کو ہم نے انڈر کنسیڈریشن بھی لیا، لیکن ایک دو پوائنٹس پہ ڈیفینیٹلی ریزرویشنز تھیں، تو اس وجہ سے نہ ہی تو پھر کابینہ کا اجلاس ہوا اور نہ ہی آگے معاملہ بڑھ سکا، لیکن جو نمبرز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، کیونکہ میڈیا کی بھی بڑی کیلکولیشن تھی اور ان کو بالکل نظر آ رہا تھا کہ اگر یہ پارٹی ساتھ دے گی یا دیگر جو لوگ سینٹ میں ساتھ دیں گے تو ان کے نمبرز پورے ہو جائیں گے۔ ویسے نہیں، مگر اس میں پی ٹی آئی کے کچھ لوگ آپ کو ساتھ ملانے پڑیں گے جو آزاد ہیں، پھر اچانک ظاہر سپریم کورٹ کا اعلامیہ بھی آ گیا، مگر اس پر آنے سے پہلے آپ نے کہا کہ کنسنسس نہیں ہوتا، تو پہلے عام طور پر آئینی ترامیم میں پہلے ڈسکشن ہوتی ہے، پھر کنسنسس ہوتا ہے، پھر اجلاس بلایا جاتا ہے اور پھر ترمیم ہوتی ہے۔ آپ نے اجلاس بلا لیا، اسٹینڈ بائی پہ اپنے ایم این ایز کو رکھ لیا، سینیٹرز کو رکھ لیا، اور اس کے بعد آپ کنسنسس ڈیولپ کر رہے تھے جو نہیں ہو سکا۔ مولانا نے کہا ہمیں تو دکھایا نہیں کہ کیا ڈرافٹ ہے۔ دیکھیں، ایک ورکنگ پیپر تھا اور کوئی مجوزہ ان اٹ فائنل فارم یا ان اٹس فائنالٹی تو کوئی اٹین نہیں کر چکا تھا۔ میں نے کل بھی یہی موقف دیا۔ ظاہری بات ہے ایک ورکنگ پیپر جب ہوتا ہے اس پہ مختلف آراء آتی ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ کوئی مجوزہ یا کوئی ایسا کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ بل تیار ہو چکا تھا جس میں چینج نہیں ہو سکتا تھا، بیکاز وہ تو تبھی پاسبل ہوتا ہے جب کیبنٹ اپروول ہو، سی سی ایل سی ہوئی ہو، اس کی میٹنگ ہوئی ہو، تو یہ تمام تر چیزیں تو نہیں ہوئی تھیں۔ پہلے تو ہمیں اپنی کمیٹی میں جو ہے وہ تمام تر سجیشن اور فزل آؤٹ کرنی تھی چیزیں ڈسکشنز کے ساتھ، اور مختلف آراء تھیں۔ ہم نے تو یہ کہا کہ ایک کثیر رائے سے اس کو منظور کرایا جائے، اور کثرت رائے سے جب منظور ہوگا، جب براڈر کنسنسس ہوگا، تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ کسی ایک پارٹی کی کوئی ایسی ریزرویشنز ہو۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بات کریں، اس پہ تمام تر پارٹیاں متفق ہیں، اس پہ تو بالکل وہ کہتی ہیں کہ جی ہونے چاہیے۔ اس کے اندر کوئی ایسی اگر شک میں کوئی ٹویکنگ کرنی ہے چیزیں تو وہ ہم اوپن ٹو سجیشن ہیں، اور بالکل ہم نے کہا ہوا ہے کہ ہمیں سجیشنز دیں۔ مولانا صاحب کی بھی بڑی مفید آراء آئی، ہم نے اس پہ بھی مستفید ہوئے اور اس کو انکلکیٹ کیا اور انکارپوریٹ کیا اس ورکنگ پیپر میں۔ مگر جو اس وقت جو ایک ڈرافٹ سامنے آیا ہے، کیا وہ ڈرافٹ حتمی ہے یا اس میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اور کیا وہ ڈرافٹ واقعی ویسے ہی ہے کہ آپ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ بنانے جا رہے ہیں، سارے کیسز اس کو ٹرانسفر ہو جائیں گے، نئے کیسز بھی اس کے پاس جائیں گے، اس کے علاوہ جوڈیشل کمیشن ریکانسٹیٹیوٹ ہو رہا ہے، جوڈیشل کاؤنسل ریکانسٹیٹیوٹ ہو رہی ہے، بہت زیادہ اختیار ہوں گے، 68 سال تک کی عمر ہوگی ان کے جج کی، سپریم کورٹ کے جج چیف جسٹس جو ہے اس کی تعیناتی 3 ٹاپ میں سے ایک کی جائے گی، ایک پارلیمانی کمیٹی بن رہی ہے جس میں ایکول ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی حکومت اور اپوزیشن کی، بلکہ جو پارلیمانی پارٹیاں ہیں ان کے اراکین 8 اراکین ہوں گے۔ یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں؟ جی بالکل، اوور آل جو ایک براڈر کانسیپٹ ہے یا وہ 3-4 جو آپشنز میں نے کہے تھے وہ ڈیفینیٹلی اس میں اس کا حصہ ضرور ہے۔ جہاں تک آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بات کر رہے ہیں، وہ ابھی سے نہیں 2006 سے، اور ایون کہ لیگل فٹرنیٹی کی بھی لانگ سٹینڈنگ ڈیمانڈ رہی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہونے چاہیے۔ ایون لیگل فٹرنیٹی بھی اگر کہتی ہے، تمام تر پولیٹیکل پارٹیز بھی کہتی ہیں کہ جو فی الوقت کے اعداد و شمار ہیں عدالتوں میں پینڈنسی ہے کیسز کی، اس کے علاوہ ہر دوسرے کیس میں ایک کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کا کیس ہے، تو ظاہری بات ہے اگر عام پاکستانی شہری کو انصاف نہیں مل سکے گا یا اس کی جو انصاف ملنے کا ٹائم ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا، اور ظاہری بات ہے یہ تمام تر فیکٹرز ہیں اس کو بھی مگر بیسٹ صاحب آپ پاکستانی کی دیکھیں، سپریم کورٹ میں کوئی 52-53 ہزار کیسز کی پینڈنسی ہے، 55 ہزار پر چلی گئی تھی، مگر جو لوور کورٹس ہیں، نیچے کی عدالتیں ہیں، اس میں تقریباً 22 لاکھ کیسز کی پینڈنسی ہے، تو اس کے بارے میں تو آپ کچھ نہیں کر رہے، اتنا بڑا مسودہ لا رہے ہیں، اس میں ہائی کورٹس کے ججز ٹرانسفر کیے جا سکتے ہیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی تعیناتی، پھر ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جس کے پاس بہت سارے اختیارات، جس کے ججز ہوں گے جوڈیشل کمیشن میں بھی، تو آپ کا پینڈنسی پر فوکس ہے یا کسی اور چیز پر فوکس ہے؟
जी बिल्कुल पेंडेंसी पे फोकस है और आज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस लॉ मिनिस्टर साहब ने भी कहा, बिकॉज मैं बड़ा क्लोजली इस चीज़ पे भी काम कर रहा हूँ कि जो हमारे CRPC में जो चेंजेस लानी है प्रोसीजर के हवाले से, और उसमें उन्होंने कहा कि जज की 1 साल के दौरानिए के अंदर उसको ट्रायल कंक्लूड करना होगा, नहीं अगर वो करेगा तो उसके ऑब्वियसली रिप्रिकॉशंस भी होंगे। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो हम CRPC में भी, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें भी बेहतरी ला रहे हैं, और 90 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स हैं उसमें, और वो भी पेश होगी, बट दैट्स नॉट थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो तो एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू वो तमाम तर चीज़ आएगी। लेकिन जो एक चीज़ ये भी आपको बताऊं कि हमें एज पार्लियामेंटेरियंस हमारा अभी जो रोल है वो एक रबर स्टैम्प के तौर पे है। हमें बिल्कुल हमारी कोई मीनिंगफुल इनपुट या कोई पर्पसफुल इनपुट नहीं होती। आपको याद है 19वीं तरमीम हुई तो किस तरह वो हमसे जो पावर्स थी, क्योंकि दुनिया पूरी में आप देखें, इवन अमेरिका की मिसाल ले लें, वहाँ पे बिल्कुल थ्रू एग्जीक्यूटिव जो है नॉमिनेशन तो हो जाती है, लेकिन उसकी कॉन्फर्मेशन या बाकी तमाम तर चीज़ें जो होती हैं वो कांग्रेचुनल हियरिंग्स में होती हैं। तो हमारा फिर यहाँ 19वीं तरमीम में तो खुद 19वीं तरमीम में तो खुद नून लीग का बड़ा किरदार है, जब क्योंकि ज़ाहिर आप इफ्तिखार चौधरी के बहुत ज़्यादा करीब थे, मगर ये अगर ये सारे काम हो रहे हैं तो इसमें हाई कोर्ट्स के जजेस की ट्रांसफर का मामला, जब आप कहते हैं पार्लियामेंट रबर स्टैम्प हो गई है, और ये बात एतराज़ आपका गलत नहीं है कि जो जुडिशल ओवर रीच है उसने इस मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया, उनके फैसलों ने भी, उनकी मुदाखलत ने भी, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को उन्होंने बार बार चैलेंज किया, बट इसका यह मतलब तो नहीं है ना कि आप आला अदलिया को रबर स्टैम्प बना दें पार्लियामेंट को या हुकूमत को स्ट्रांग बनाने के लिए। आप तो ऐसा लग रहा है आला अदलिया को रबर स्टैम्प बनाने जा रहे हैं। नहीं, कतई नहीं। देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल एक सुप्रीम कोर्ट का, दुनिया पूरी में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स काम करते हैं, दुनिया पूरी में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ये हम कोई अनोखा काम नहीं करने जा रहे। जाहिर बात है हर दूसरे केस में आइन की तशरीह के हवाले से केस, जिस तरह मैंने आपको अर्ज़ किया, वो आ जाती है। कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आइन की तशरीह की ज़रूरत भी शायद नहीं महसूस होती। आपने देखा 63A के ऊपर जिस तरह गैर ज़रूरी तशरीह कर दी गई, जब वो गुनाह हुआ ही नहीं, मतलब उसके साथ वोट ही नहीं काउंट होगा। अब वो इन इटसेल्फ 63A बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था, जिसमें एक स्टेप आगे जाया गया और कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट भी किया गया। तो ये ऐसी मिसालें हैं जो जुडिशल एक्टिविज्म में भी देखने को मिलती हैं कि ओवरली एंथुजियास्टिक जुडिशल एक्टिविज्म है, जिसने इस मुल्क के न सिर्फ आइन के साथ बल्कि इस पूरे निज़ाम के ऊपर जो है बड़ा असरअंदाज हो रहा है। तो जाहिर बात है हमें भी सिर्फ जुडिशरी का बट पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, जुडिशल एक्टिविज्म, मगर आप इलेक्शन कमीशन से मुतालिक आर्टिकल 215 में भी आम तजवीज़ कर रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के अराकीन की मियाद पूरी होने के बाद भी नए शख्स के ओहदे पर आने तक वो काम करते रहेंगे। उन्हें कौमी असेंबली और सेनेट से एक करारदाद मंजूर करवाकर दोबारा उसी मुद्दत के लिए तैनात किया जा सकता है। ये मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नवाजने के लिए है। इसका क्या ताल्लुक है अदलिया से? नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। एक कंसिस्टेंसी है और एक कंटिन्यूटी है, ताकि कम से कम जब तक नया बंदा अपॉइंट नहीं होता और अगर इलेक्शन सर पे आ जाते हैं ऑब्वियसली, तो फिर ये ना हो कि एक कंटिन्यूटी को तोड़ा जाए और ये पोजीशन ही वेकेंट हो उस टाइम। ये देखिए, ये आगे देखने वाली चीज़ें हैं कि सिर्फ हम ये अगर कहा जाए या ये एलिगेशन हमारे पे लगाई जाए कि ये सिर्फ हम अभी के लिए कर रहे हैं, तो ये कतन एक करारदाद आप नहीं, आप अभी के लिए इसलिए कर रहे हैं कि आप करारदाद का कह रहे हैं। करारदाद का मतलब है मेजॉरिटी से, मेजॉरिटी का मतलब है हुकूमत, क्योंकि मेजॉरिटी आपके पास है, ऑपोजिशन नहीं है इसमें। जी बिल्कुल, देखिए अगर नंबर्स हैं तो डेफिनेटली बाय सिंपल मेजॉरिटी हम कर सकते हैं। हमारी अकल समझ सोच के मुताबिक हम तो अच्छी ही तजवीज़ ला रहे हैं, कोई बुरी चीज़ तो ला नहीं रहे। और अगर इस पर कोई बोन ऑफ कंटेंशन है किसी ऑपोजिशन जमात की तरफ से और वो कहते हैं कि इसको कंसिडर ना करें, तो ये हम कंसिडर कर सकते हैं कि इसको निकाल दें। मगर आपकी अपनी इंटेंट है, मगर जो आपकी अपनी इंटेंट है और नियत है, ये जो इलेक्शन कमीशन है, दे हैड वन जॉब, इलेक्शन कराने थे, ट्रांसपेरेंट नहीं करा पाए, और आप ऐसा लग रहा है कि उन्हीं को तौसीह देना चाहते हैं सिंपल मेजॉरिटी से। नहीं, कतई नहीं, ये बड़ा गलत एक तासुर है कि हम उनको तौसीह देना चाहते हैं। अभी तो ये कोई ना टेबल हुआ है ना इसकी फाइनलिटी अटेन हुई है। शाहजेब साहब, अगर देखें हमारे इत्तेहादी भी हैं, वो भी ऑब्वियसली इस पे आरा रख रहे हैं, हाँ अपोजिशन के मेंबर्स हैं। अगर कोई ऐसी बात आती है, हम तो सबको साथ मिला के चलना चाहते हैं। हम कहते हैं एक ब्रॉडर कंसेंसस बिल्ड किया जाए, एक कसरे राय से जो है इसको पास करवाया जाए, ताकि कल को कोई जमात इस पे कोई क्वेश्चन ना कर सके, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। ये कोई सिंपल बिल नहीं है या कोई लॉ नहीं है जो सिंपल मेजॉरिटी से पास होना है। तो ये जो ड्राफ्ट है मौजूदा, इसमें बहुत सारी तब्दीलियों के लिए आप तैयार हैं ताकि कंसेंसस डेवलप हो?
जी एब्सोल्युटली बिल्कुल, एंड वी आर गोइंग विद एन ओपन माइंड, और बिल्कुल हम एक अच्छी साफ नीयत के साथ, एक अच्छे जहन के साथ, एक ओपन माइंड के साथ हम तो चाहते हैं कि इसमें हमारे साथ तमाम तर जो है पॉलिटिकल पार्टीज अलाइन हो, जो आयल के उस तरफ भी हैं, आयल के इस तरफ भी हैं, ताकि इसको एक अच्छी शक्ल दी जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान की अवाम के मफाद में होना चाहिए, ना कि किसी सियासी जमात के मफाद में होना चाहिए। अगर आप ये चाहते थे तो ये कल रात 1 बजे तक क्या हो रहा था? इससे पहले होना चाहिए था ना। ये अभी से नहीं चल रही, ये काफी टाइम से चल रही हैं, और इवन के ऑपोजिशन को भी हम काफी टाइम से इन कांटेक्ट हैं। मतलब स्पेसिफिकली अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पीटीआई की बात करूं तो उनका तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन दीगर जो ऑपोजिशन जमातें वक्तन फवक्तन उनसे भी गाए बगाए इस पे बात हुई है। ये कोई ओवरनाइट कोई आसमानी सहीफा नहीं था कि वो नाजिल हो गया जो कि हमने पेश कर दिया। अगेन मैं यही कहूंगा कि उससे पहले उसके प्री रिक्विजिट्स हैं। उसके प्री रिक्विजिट सबसे पहला ये था कि ये यहां से फाइनलाइज होता, इधर कोई हतमी शक्ल इख्तियार करता ये वर्किंग पेपर, तो फिर हमें इसको CCLC में लेके जाना पड़ता, कैबिनेट अप्रूवल होता, उसके बाद ये जाके कहीं पेश होता। तो क्या पीटीआई के साथ ही मुसविदा शेयर हुआ था? वो कहते हमने देखा ही नहीं। क्या पीटीआई के साथ ही मुसविदा शेयर हुआ? देखिए, उनको सेलिएंट फीचर्स जो हैं वो उस कमेटी में बताए गए हैं, और सबसे ज्यादा इनपुट उन्हीं की तरफ से आई है, सबसे ज्यादा सवाल और जवाब भी उस कमेटी में उन्हीं की तरफ से किए गए हैं। लेकिन फिर भी अब पीटीआई खुद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स पे एग्री करती है, वो कहती है कि ये मगर बैरिस्टर साहब, जब आप कहते हैं कि सबसे ज्यादा इनपुट उनकी तरफ से आई है, तो इस डॉक्यूमेंट में प्रिसाइजली कौन सा इनपुट पीटीआई का है जो आपने इनकॉर्पोरेट किया है? देखिए, अब उनकी तरफ से जो इनपुट एक्सेप्टेंस के हवाले से अगर मैं बात करूं, उन्होंने इन प्रिंसिपल एग्री किया है। उन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बिल्कुल होने चाहिए, और वक्तन फवक्तन उन्होंने जो चीज़ लॉ मिनिस्टर साहब ने उनको इसके सेलिएंट फीचर्स एक्सप्लेन किए, उन्होंने कहा इस चीज़ में चेंज करना चाह रहे हैं, इसको बेहतर बनाना चाह रहे हैं, इसके अंदर जो है एक मुस्बत चीज़ आ रही है। तो ओवरऑल जो है उनका एग्रीमेंट है, लेकिन उनका एक बोन ऑफ कंटेंशन जो है वो गालबन और दीगर का भी हो सकता है। जाहिर बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का अब आपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अगर लगाना है और या हाई कोर्ट के जजेस को लगाना है, तो उनकी तमाम तर एजेस जो हैं वो 65 एंड अबव हैं। कहीं चीज तो आपको स्टार्ट करना है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, और उसके बाद हम इसको नीचे भी लेके जा रहे हैं कि 65 पे ही आ जाए। ये लाजमी नहीं है कि 68 तक ही हो। बट आपने ओपन टू सजेशंस, यू आर ओपन टू सजेशन, बट आपने कहा यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। बट आप पर तनकीद ये हो रही है कि यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम वन स्पेसिफिक पॉइंट, और जब आप ये करते हैं कि जो वैसे तो बाद में पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस और जजेस बनाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के, मगर जो पहला चीफ जस्टिस होगा वो वजीर आजम के एडवाइस पर सदर तैनात करेंगे, 68 साल का हो सकेगा, तो फिर इससे तो जाहिर होता है कि आप एक ही पॉइंट से एक ही शख्सियत की वजह से ये अमेंडमेंट ला रहे हैं, और वो शख्सियत खुद कह चुकी है कि उन्हें तौसी नहीं चाहिए। पहले 68 साल की बात की गई, अब यहाँ पर 68 साल की बात कर दी गई। ये क्या मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब के लिए? नहीं, कतई नहीं शाहजेब साहब, ये भी एक बड़ा गलत तासुर दिया जा रहा है। देखें, आज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस नवीद कमर साहब ने भी ये बात की, अब इवन के मौलाना साहब ने ये बात की। हमने कौन सा कह दिया कि हमने उन्हीं को लगाना है? मतलब ही कुड बी वन ऑफ दोस चॉइसेस अमंग्स्ट मेनी अदर चॉइसेस। ये तो नहीं कहा गया कि शुरुआत ही उनसे करनी है या उन्हीं को लगाना है, ऐसी तो कोई कतन बात नहीं की गई। लेकिन आपने स्टार्ट तो कहीं से लेना है ना। आप एक नया सेटअप दे रहे हैं, एक नए मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसा नहीं लग रहा कि आप कहीं से स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसे लग रहा है आप यहीं से स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आप इस पार्लिमानी कमेटी जो बना रहे हैं तैनाती के लिए, उसको पहला इख्तियार नहीं दे रहे हैं, वजीर आजम को दे रहे हैं कि वो पहला फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात करें वजीर आजम के एडवाइस से सदर। फिर आप उस कमेटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं हुकूमत की और ऑपोजिशन की, बल्कि आप कह रहे हैं कि पार्लिमानी पार्टियां कोई भी हो सकती है, उसमें ज्यादा हुकूमती पार्टियों की तादाद हो सकती है। देखें, उसको बेसिक स्ट्रक्चर जो है, एक तो पहली बात है कि जिस हवाले से आपने बात की, कहीं से तो स्टार्ट लेना है, कहीं से तो वो मैकेनिज्म बनना है। अब अगर नहीं बनेगा तो बाद में आ जाएगा। ये दूसरी जो बात आपने की कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन के हवाले से, जाहिर बात है ऑपोजिशन में भी कई जमातें बैठी हैं, और इवन के गवर्नमेंट में भी एक एलाइज की गवर्नमेंट है। तो ये नहीं हो सकता कि मतलब बेसिक नंबर और स्ट्रक्चर वही है, उसको थोड़ा सा ट्वीकिंग किया गया है कि एक रिप्रेजेंटेशन के ऊपर या परसेंटेज के ऊपर उनकी जो है रिप्रेजेंटेशन आ जाए। ये नहीं है कि दो ऑपोजिशन से लें और दो जो है आप इससे लें। बिल्कुल जाहिर बात है वो होंगे इसी तरह ही, लेकिन वो पार्टी सिस्टम जो है उसको भी मद्देनजर रखा गया है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम है ना कि जो है वो एक मखलूत। अब एक आप फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जिसपे के बहुत सारे इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के आपने उस कोर्ट को दे दिए हैं, जुडिशल कमीशन, तैनातियां, बहुत सारे मामला आपने उसको दे दिए, मगर जब उसकी
تعیناتیاں خود ہو رہی ہیں، اگر وہ تعیناتیاں حکومت کی میجورٹی کر رہی ہے اور حکومت اپنی مرضی سے کر رہی ہے، تو پھر تو آپ پورے کے پورا جو ملک کا جوڈیشل نظام ہے اس کے اوپر حکومت کی چھاپ لگا رہے ہیں، اس کو کمزور کر رہے ہیں اس طریقے سے۔ نہیں، قطعاً نہیں شاہزیب صاحب، یہ بڑا ایک غلط اگین تاثر دیا جا رہا ہے فی الوقت۔ یہ میں نے جس طرح عرض کیا کہ یہ ایک ورکنگ پیپر ہے، یہ کوئی فائنالٹی اٹین نہیں کر گیا۔ اگر کوئی ایک بہتر آراء اگر آپ کل کامیاب ہو جاتے تو ہو جاتا، اگر آپ کل رات کامیاب ہو جاتے تو یہ فائنالٹی اٹین کر جاتا، کر نہیں سکا، ارادے آپ کے پورے تھے، اب دوبارہ کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، ہم اب اگین میں نے آپ کو یہی کہا ہے کہ کمیٹیز آپس میں مل رہی ہیں، آج بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جب تک یہ ایک براڈر کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوگا تب تک ہم اس کو ٹیبل نہیں کریں گے۔ جب یہ براڈر کنسنسس ہو جائے گا، کثرت رائے سے ہم اس کو پاس کروانا چاہتے ہیں کہ دونوں سائیڈوں سے، اپوزیشن بھی اور گورنمنٹ بھی، اس پہ ان اگریمنٹ ہو تاکہ ہم اس کو پھر اس وقت ٹیبل کریں، اور یہ ایک پاکستانی قوم کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے ایک اچھا سٹیپ ہوگا۔